Welcome, friends, to Lift India Filmotsav World Cinefest 2020. And we are here with the iconic Mr. Raman Kumarji. I'm happy to share the news with you that Lift India has conferred the Lifetime Achievement Award for 2020 for his outstanding contribution to the Indian television industry. Not only in the television industry, he has written so many films, uh, theater, and he himself is an actor and a producer. Uh, the more I say is going to be less. So it's best that we dive straight into the conversation with Ramanji. Namaskar, Ramanji. Namaskar, namaskar, Riju, namaskar. After a long Thank time, you. yeah, Ji, I'm happy to thank, be here. Happy to be here. thank you for accepting us and Lift India. And it's our honor that you have accepted our award. Uh, at it's very generous of you, and so. It's we would like to tell the people here who are our viewers on the internet uh, that all went into making of you, and uh, as an artist, a complete artist, and you've had covered a journey of more than 30 years in this film and television industry in Mumbai, especially that is part of India. It's now known. And as our title of the firm is also Lift India, it's like we are trying to lift India and trying to recognize people who have contributed into making India for what India is today. So, Ramanji, we would first like to know your childhood days, in the sense your playing with theater and arts at your school and college level. Yeah, I was Riju born in Amritsar, and typical story of many families in India. Your father goes out to work, बड़े शहर में जाता है, then he goes into big city, works hard, makes a small home, then calls his family. So my father did the same. He came to Bombay. He was into the transport, and he worked hard and he made a small house and called us. I was in school. So naturally, I was coming from Amritsar to join a Hindi medium school, this famous school for all the Punjabis, that is Guru Nanak High School, and then the Khalsa College. Joining Khalsa College was my turning point. Khalsa College, Bombay. Ji. Because Khalsa College was having a tradition of theatre. It had a legacy of theatre. Lot of people like V.K. Sharma, Bharat Kapoor, Ramesh Talwar, Sagar Saradi. Of course, it started with Dilip Kumar studying in Khalsa College. And but I'm talking about the contemporary, like, so those people were still quite active in the theatre activities in Khalsa College, which got me interested into theatre. And as Ramesh Talwar was the immediate generation, after Ramesh Talwar, my generation came in. Myself, Javed Khan, actor Javed Khan, and like Chandrabhai, director, we all were in the same class, same class. Avatar Gill later on joined, uh, has been a part of Khalsa College activity, my theatre group. So it got me interested, and I started doing theatre in the college. And that's how I got into it. And with Ramesh Talwar, I went into IPTA. That I was exposed to Balas Sani, I was exposed to Kafi Azmi and K. Abbas. All those writers, all those Rajendra Singh Bedi, and all those big people were there. And you naturally started grabbing the things from them, started learning from them,
And that's how my growth started. And that there also I got interested into acting. Of course, acting was the major. Everybody starts with acting only, but I got interested into writing part of it also. And there's a funny incident which turned me into the writing. So in Bombay, there's a great culture of intercollegiate competition, which in India no else other country has. Ji. Great people has performed in the intercollegiate competition and has become the professionals in Marathi theatre, Gujarati theatre, Hindi theatre, Kader Khan and Shafi Namdar and all those people have come from Bombay intercollegiate theatre competitions. Ji. And in that competitions, every college used to need the one act plays. Okay. And Hindi, as Hindi, there's hardly a theatre plays written in Hindi. Generally, you have to translate from English, from Hindi, from Marathi, from Gujarati. There's hardly any this. So I knew Marathi. I Ji. started doing Marathi translation one act plays to Hindi, Oh, and I lovely. used to get, yeah, I used to get 50 rupees to be. I used to pay 50 rupees for that. And those But days, 50 Ramanji, rupees, 50 years, yeah, yeah. Those days, 50 rupees was. it's 1 month expense. It's 1 month expense that 50 rupees you can spend. You can almost pass 1 month because I used to stay in hostel. Okay. My college was in Chembur because I used to get late in my theatre lessons, so I shifted to hostel. घर में कुछ झूठ वूठ बोल के कि पढ़ाई में हर्जा होता है, ये होता है, वो होता है, तो मैं हॉस्टल में आ गया ताकि वो लेट एंट्री की टेंशन ना रहे. So तो your आई parents, घर वालों को तकलीफ नहीं थी या परेशानी नहीं थी आप आर्ट्स में या थिएटर में ज्यादा अपना वक्त दे रहे हैं? नहीं, मेरा क्या हुआ कि दे नेवर ऑब्जेक्टेड टू इट. They were all happy whatever I am doing it. So net banking has started. You have to go to the PNB website. Your customer ID will remain the same. So uh, Yeah, your like parents चेंबूर हॉस्टल में थे आप. yeah, hostel में थे. तो they never had any objection. In fact, they never interfered any of my decision in my life. They only supported me. Like when I said कि मुझे FTI में जाना है, my father जी. my father didn't know what FTI is because he is not the from the educated lot. He is typical hardworking people who has come in life in a difficult way. So he only asked me after a pause, what will be the expenses? That's all. Uh, so I said, no, I have arranged that. So he said, okay, that's fine. Oh, Continue. So I started doing theater. There I got into the more into the writing and direction interested in writing and direction. so how did And FTI help you in discovering yourself? And what was and your experience in FTI? Because FTI, I'm sure in the 70s was very different what it is now. yeah, FTI is another chapter of my life. My life one is joining Khalsa College, one chapter, जी. meeting Ramesh Talwar, जी. and then Ramesh Talwar when became director, I wanted to join him as an assistant, Hmm. and he was happy. But he always told me one thing, तुम ग्रेजुएट हो जाओ. तो मुझे समझ नहीं आता था कि ग्रेजुएशन का लेना देना क्या है. He always insisted on one thing कि the person should be graduated. तो तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो उसके बाद ज्वाइन करना. तो मैंने एक इजी सा सब्जेक्ट ले लिया जो मेरे बहुत काम आया. सब्जेक्ट तो लिया था इजी का ताकि ग्रेजुएशन जल्दी जल्दी हो जाए मेरी आसानी से कि हिंदी में मैं बीए कर लूंगा. वो हिंदी में बीए करना मेरे लिए बहुत ही एक
another turning point था, because that made me comfortable with the language. The language which I was performing, language, so that helped me in writing. That helped me adaptation. That helped me. So then when I got graduated, I said I want to join him. He said FTI चले जाओ, फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ, डायरेक्शन का कोर्स करो. तो मैंने कहा मैं यही सीख लूंगा ना. बोले he always believed, though he never went to any institute. He learned from all others. He learned from the film industry only. But he always believed that a proper education for any person is very important factor. FTI changed me. FTI changed my viewpoint. FTI changed my vision. FTI changed my whole attitude towards life. FTI changed my viewpoint of looking at cinema, where cinema was much more than the entertainment. And FTI, I saw so many films in FTI. At least 2 films a day. In an average, 1 film a day was definitely from Hindi to French to classics to English to Yugoslavian to Czechoslovakian movies, Japanese. And I think FTI was the best thing happened to me as far as my vision is concerned. There I met Rakesh Bedi, also my classmate, and Javed Khan was my senior. I had become because he had joined 1 year earlier. And there are so many people I met, and Satish Shah and all those people. So I think for any person who wants to join the film industry or any person who wants to join the any entertainment industry, going to any institute, but mind you, good institute is very important. Yes, of course. There are so many institutes which are frauds, which are run by the good for nothing people that don't waste time and money in those institutes. They misguide you. They teach you dancing and horsing and tell you it's acting. And they show you some movies and tell you it's a direction. They show you some screenplay and tell you it's writing. But going to any institute like FTII, Satyajit Ray Film Institute of India, Calcutta, Chennai Film Institute, Yes. and these are the few ones. Or of course, even if you don't want to join the theatre or going to NSD, and learning theatre is very important factor. That is another place which is very good for learning. So, do you think theater plays a major role for working in television and films? One should have. Theatre plays major role in any art format. Even if you want to become a painter, theatre plays a major role. What is this coming? Please wait. Is the recording is on? Yeah. Yeah, recording is on. Recording is on. So theatre plays very major part. Even if you want to even if you want to become a painter, theatre is very important factor. Even if you become a poet, writer, theatre is very important factor. Theatre is important factor in any form of art form you want to be activist. Any art form in which you want to be professional. I think theatre background, theatre learning is very important and very helpful. So, how Theatre was is your part of your experience? life. Even if you tell me. Yeah, no. Tell me. You were saying something. आप कुछ कह रहे थे. Now, theatre, even if you don't want to go into the entertainment industry, just want to spend a good, happy life, good, educated life, theatre is very important factor. If you've done theatre,
you have been part of theatre group, your vision will be very different. तो आप जब कॉलेज में आपने थिएटर किया, कॉलेज से बाहर आके आपने ज़िंदगी में थोड़ा थिएटर किया, इप्टा से आप जुड़े और उसके बाद आप एफटीआईआई में आए जो कि प्रॉपर्ली सिर्फ फ़िल्म के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सो चूँकि आप थिएटर बैकग्राउंड से एक फ़िल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप आए, सो व्हाट वर द चेंजेस यू फेल्ट? एक जैसे होता है ना, एक जब हम गाँव से शहर आते हैं तो एक कल्चर शॉक लगता है। तो जैसा आपने बताया कि आपको बहुत सी कुछ दुनिया भर की फ़िल्में देखने को मिली हैं और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या हुआ? और आपने अपने आप को किस तरफ पाया? बिकॉज़ यू आर आल्सो एन एक्टर, यू आर अ राइटर, यू आर अ डायरेक्टर, तो कौन-सा वो फ़ील्ड था जो आपको ज़्यादा उसमें मोहित किया? See, acting has never been my interest. Of course, I've acted on stage, but in films and television, acting has never been my interest and my field. Somehow or the other, I'm fairly good actor, but somehow or the other, it never interested me. It never interested me. I was always interested in direction, basically, and writing was next to it. Was always interested me, and to get this vision, Film Institute helped me more. ओके, In fact, Ramesh Rama wanted me to become an actor and take acting in the Film Institute. But I, somehow or the other, Girish Karnad was our principal, so he also influenced me. He himself was an actor, writer, director. He influenced me, and I went into direction, and then I did pass out from Film Institute as a screenplay and direction student. ओके। So that 4 years in the FTI helped me to turn myself to the direction form. So, how was the system when you came out of FTII? Because एक FTII में आप बहुत ही शील्डेड माहौल में होते हैं, जहां आपको सब सुविधाएं मिलती हैं, सब कुछ चीजें मिलती हैं, और जब आप एक इंस्टीट्यूट से बाहर आते हैं, और तो उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा वहां पे, और क्या चीजें डिस्कनेक्ट लगा, या कुछ आपको ज्यादा सुविधाएं उसकी वजह से मिली क्योंकि आप एक FTII से ग्रेजुएट होकर आए थे? और एफटीआई में जिस तरह की फ़िल्में और जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, क्या वो आप उसका फ़ायदा आपको मिला जब आप एक प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में आए? माहौल जब बाहर आए तो वो उतना ही खतरनाक था जितना किसी और आदमी के लिए होता है। बट चूंकि हम ट्रेंड होके आए थे और वेल गार्डेड थे, जी, तो इस वजह से थोड़ा बेटर माहौल मिला और चीजों को फेस करने की ताकत ज्यादा थी। बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन जी, we were more stagnant to face the people, face the things, and we knew many ways to get your career get made. Like me, जी, I became to assistant to Ramesh Talwar. I started assisting Zamana, Dunya, Sawal. These are the films which are the. I was as a Basira. Basira was one जी, of the films. I was assistant in those films. जी, But and like we are from being my FTI graduation, I जी, also knew there is a body called NFDC, जी, National Finance Development, the National Film Development Corporation, गॉट करेक्ट। and they also finance the movies. जी, So I had written a screenplay while in FTI. एज ए ओके, पार्ट ऑफ माई कैरिकुलम हमको एक स्क्रीन प्ले सबमिट करनी पड़ती थी। तो ओके, मैंने वो फिल्म लिखी थी, एक कहानी थी फ्रॉम लिटरेचर, कोलंबस जिंदा है, उसके अच्छा, ऊपर मैंने एक स्क्रीन प्ले लिखी थी। तो मैंने कहा वो स्क्रीन प्ले तो मेरे पास रेडी पड़ी हुई है, मैं जाके एनआईडीसी में दे देता हूँ। हुँ, तो एनआईडीसी में दे दी। फिर एनआईडीसी में पता चला कि बासु भट्टाचार्य चेयरमैन है, तो मैं उनको मिलने चला गया। तो ही वॉज वेरी हैप्पी।
because when we were in FTII, जी Basu Bhattacharya was the chairman of FTI also, along with Basu Bhattacharya and along with Rishikesh Mukherjee. जी And I was a college association, student association president. ओके And I led a strike against Basu Bhattacharya and Rishikesh Mukherjee. I led a strike, जी student strike. And एफटीआई in की that स्ट्राइक की बात कर strike, रहे हैं eh, आप एफटीआई की स्ट्राइक 70 की बात कर रहे हैं college, because this FTI strike, student strike, discussing the curriculum activity, दूसरा जो हमारी जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होती है जी उनको लेके मैंने स्ट्राइक लीड की. उस स्ट्राइक में द ग्रेटनेस ऑफ ऋषिकेश मुखर्जी एंड बासु भट्टाचार्य वाज दिस, they became my friend. They became very good, all friends of mine, जी because कहते हैं ना the way कि I, जी वो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे गहरी दोस्तियां या जो प्रेम है वो लड़ाई से ही शुरू होता है लड़ाई से शुरू होता है. तो बासु भट्टाचार्य को पता चला कि मैंने एफटीआई में, मैंने एनएमडीसी में अपनी स्क्रिप्ट डाली है, तो वो बहुत खुश हुए, बोले अरे अरे वो तो हो जाएगा. तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उनको बहुत पसंद आई, फिर उन्होंने डिस्कस की, उन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट की उसमें जो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से थी, और मेरा एक्सपीरियंस उसमें कम था. मैंने वो चेंजेस करके दोबारा स्क्रिप्ट दी जो पास हो गई, और आई मेड माय फर्स्ट फिल्म. सो दिस वाज, एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ माय दैट साथ साथ. साथ साथ यस उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे बिकॉज वो बहुत ही प्यारी क्यूट फिल्म थी हाँ, फारूक शेख साहब थे उसमें फारूक शेख दीप्ति नवल थी उसमें. जी तो उसके बारे में थोड़ा सा किस्सा कि वो फिल्म चूंकि आपने एक फिल्म इंस्टीट्यूट के में कार्य का उसमें दौरान आपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान आपने वो लिखी वो फिल्म और बनाई जब आप फिल्म स्टूडेंट नहीं थे बाहर आने के बाद तो क्या वो स्क्रिप्ट आपने और इवॉल्व हुई और बेहतर बनी पहले से आपको खुद को लगा और फारूक जी के साथ काम नहीं, करने में आपको कैसा लगा मैंने उस स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस नहीं किए, वाह क्योंकि उस स्क्रिप्ट को लिखने में एक चीज थी, जी वो थी स्टूडेंट टाइम पे जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, जी आप पूरी ईमानदारी के साथ लिखते हैं. आपके ऊपर कमर्शियल बोझ नहीं होता, ओके आपके ऊपर कमर्शियल बोझ नहीं होता, आपके ऊपर फाइनेंस की जरूरतें नहीं होती. आपको लगता बस ये फिल्म, बस ये ऐसी होनी चाहिए. तो किसी किस्म की कोई बंधन, कोई जो है बंदिश नहीं थी बोझ, ईमानदारी थी. और जी मुझे बासु भट्टाचार्य ने भी कहा, और मेरी अपनी भी ये राय थी कि उस ईमानदारी को मैं ना छेड़ूं. जी लेकिन क्योंकि गानों का शौक मुझे शुरू से रहा है, म्यूजिक मुझे फिल्मों में हमेशा अच्छा लगता रहा है, पोइट्री मुझे हमेशा अच्छी लगती रही है, तो मैं चाहता था कि कुछ गाने हो जाएं. अब यहां से होती है एक जर्नी शुरू, जी जो कमाल की है. वो जर्नी बहुत कमाल की है. जी थोड़ा बताएं इस बारे में जावेद अख्तर साहब लिख रहे थे, सलीम जावेद में हमारी स्क्रिप्ट लिख रहे थे फिल्म जमाना, और मैं, चूंकि उनके वो सीन उर्दू में लिखते थे और मैं उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट कर लेता था, मैंने उर्दू सीखी थी, शौकिया, उस शौक जी काम आ गया. जी तो मेरी जावेद साहब से बेइज्जती होगी, तो मैंने जावेद साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है वो इस फिल्म के गाने लिखे. जावेद साहब ने तब तक गाने लिखे नहीं थे, अच्छा और पोइट्री भी करते थे, पोइट्री करते थे. पोइट्री तो जी उनके ब्लड में है. 7 जनरेशन फ्रॉम फादर साइड एंड 7 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड आर द पोइट्स. जी तो बिल्कुल उनके ब्लड में है, तो पोइट्री वो शौकिया करते थे. लेकिन प्रोफेशनली उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया था, प्रोफेशनली पोइट्री भी करना शुरू नहीं की थी. सुनाते नहीं थे, ओके ऐसे ही शाम को महफिल वहफिल दारू वारू पी के महफिल में सुनाते थे, अदरवाइज कुछ नहीं सुनाते. जी तो उन्होंने कहा था दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म. एज अ और लिरिसिस्ट अब एज ए लिरिसिस्ट,
और कुलदीप सिंह हमारे साथ खालसा कॉलेज में सीनियर थे और रमेश तलवार के बैच के थे और कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर था, ये मैं जानता था क्योंकि उनके साथ काम करता था। कॉलेज के लिए वो ग्रुप सॉन्ग तैयार करते थे और कॉलेज के स्टूडेंट से गाया करते थे, तो मैं उनका एक तरह का तालिबे इल्म था। म्यूजिक से तो मेरा कोई ताल्लुक था नहीं और मैं बेसुरा हूँ। तो जो है वो अपना मैं उनके साथ फैन के तौर पे रहा करता था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उनकी भी पहली फिल्म वो भी तैयार हो गए। तो अब हम ये सोच रहे थे कि हमारा ये म्यूजिक कुछ ऐसा क्या हो इसमें कि ये थोड़ा यूनिक हो जाए। तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इस गाने, अच्छा जब हम एफटीआई में थे हम एक दोस्त के घर पे जाया करते थे। वो दोस्त जो है वो हमें खाना वाना खिलाता था, शराब वाना पिला देता था। कभी कभी हम बस चले जाते थे उसके घर में चले जाते थे और वो भी अकेला रहता था। उसके माँ बाप सारे जापान चले गए थे और वो कुछ बिजनेस को वाइंड अप कर रहा था, इस वजह से रहता था। वो एक रिकॉर्ड सुना करता था, एलपी था, लॉन्ग प्ले होते थे उन दिनों जी, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन जगजीत सिंह चित्रा सिंह का, शिव कुमार बटालवी का पूरा। जी। और शिव कुमार बटालवी को हम सुना करते थे। उन दोनों का मैं आवाज का बहुत बड़ा फैन था। तो मैंने कुलदीप सिंह से रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा पापा जी अगर ये दोनों गा दे ना इस फिल्म के लिए सारे गाने तो यूनिक हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो पैसे वैसे तो है नहीं है, पर कुलदीप सिंह जो है ना, उन्होंने फोन किया जगजीत सिंह को और वो गए जगजीत सिंह के पास। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे एक लड़का है, वो फिल्म बना रहा है एफटीआई का, फारूक शेख उसका दोस्त है इसलिए काम कर रहा है, दीप्ति नमल में उसकी डिप्लोमा फिल्म में काम किया था इसलिए काम नहीं है, बाकी सब कॉलेज के दोस्त यार दोस्ती है, एफटीआई यार दोस्ती है। अवतार गिल है और सतीश शाह है, जावेद खान है और कैमरामैन भी उसका क्लासमेट है सुनील शर्मा, साउंड रिकॉर्डर्स भी क्लासमेट ही है जगमोहन आनंद। तो सब क्लास वाले मिलके एक फिल्म बना रहे हैं। जी। तो आपको दोनों को गाने हैं सारे गाने, अब पैसे है नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करना रॉयल्टी में शेयर दे देना, पैसों की जरूरत नहीं है। बल्कि उन्होंने हमारी, जगजीत सिंह ने हमारी रिकॉर्डिंग में भी बहुत मदद की। इनफैक्ट अच्छा। 2-3 बार तो रिकॉर्डिंग का बिल उन्होंने, थिएटर का बिल, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का बिल उन्होंने लिया खुद अपनी जेब से, बिकॉज ही गॉट सो मच इंटरेस्टेड। और कुलदीप जी ने गाने बनाए, जावेद अख्तर ने गाने लिखे हैं। जावेद अख्तर ने जो एक बार लिख दिया वो दोबारा नहीं लिखना पड़ा। कुलदीप सिंह ने जो ट्यून एक बार बना दी वो दोबारा नहीं बनानी पड़ी। सर वो आज तक हमारे जहन में घूमती है। हम जब बम्बई में कोई भी, जब ये यंग लोग आते हैं और यंग कपल खासतौर पे जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं या अभी शादी करके घर बसाते हैं, तो एक गाना है उस फिल्म का, वो आई थिंक सब ये तेरा घर, ये जोड़े मेरा जो घर, जी जी किस देखना होगा। जी जी, आई थिंक इट इज एवरग्रीन सॉन्ग एंड व्हाट उसका एक, उस गाने के लिए कुलदीप सिंह को कॉम्प्लीमेंट मिला, जावेद अख्तर को कॉम्प्लीमेंट मिला कैफी आजमी साहब से। वो कॉम्प्लीमेंट बहुत कमाल का था। जिन दिनों मेरी फिल्म साथ साथ बन रही थी उन दिनों महेश भट्ट की फिल्म अर्थ भी बन रही थी। जब मेरी शूटिंग चल रही थी, अर्थ की शूटिंग चल रही थी, जब मेरी डेटिंग चलती थी, अर्थ की डेटिंग चलती थी, डेटिंग रूम सेम दोनों का, हम दोनों वहीं बैठे रहते थे। अर्थ में एक सिचुएशन थी जब राजकिरण और शबाना आजमी एक नया घर लेते हैं तो अपने घर को सजाते हैं। तो उन्होंने कैफी साहब से कहा कि दोनों अपना घर लेते हैं और गाना, घर सजाते हुए गाना गाते हैं। तो ऐसी ये सिचुएशन है, इस पे गाना लिख दीजिए। जी। कैफी आजमी का हैपन सो कि जावेद अख्तर साहब, क्योंकि कैफी आजमी के बहुत मुरीद थे, अच्छे फैन थे, तो उन्होंने जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया तो कैसेट ले जाके कैफी साहब को सुनाया कि देखिए मैंने ये गाना लिखा है, ये पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था, तेरा घर ये मेरा घर फिल्म का।
जी, जी, उन्होंने सुनाया, कैफी साहब बहुत मुतासिर हुए, बहुत खुश हुए, उन्होंने जी, पीठ थपथपाई। मुझे भी जब मैं इफ्तार में उनसे मिला तो मुझे कहा कि भाई तुम्हारी फिल्म का गाना सुना, बहुत ही कमाल का गाना है। हम्म, और जब महेश भट्ट आए अपना गाना लेने के लिए कैफी आजमी साहब से, तो महेश भट्ट ने कहा कि आप ये गाने की सिचुएशन बदल दो। तो महेश भट्ट ने कहा क्यों? बोले कि मैंने एक फिल्म में गाना सुना है जावेद अख्तर का लिखा हुआ, सेम सिचुएशन में, उससे बेहतर मैं नहीं लिख पाऊंगा। ओ, जावेद अख्तर से ने जो गाना लिख दिया है वो उससे बेहतर मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप ये सिचुएशन बदल दो। तो व्हाट अ महेश भट्ट ने कॉम्प्लीमेंट सर। बट कॉम्प्लीमेंट, बड़ा बड़ा आदमी चाहिए, जी, बड़ा आदमी बिल्कुल। होना चाहिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी। जी, जी, बिल्कुल। तो महेश भट्ट ने फिर वो गाना उसमें उस सेम सिचुएशन पे गाना रखा, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। छुपाया, हाँ, हाँ, हाँ। सेम सिचुएशन पे ये गाना चेंज किया उन्होंने। दिस वाज द जी, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम कैफी आजमी to Javed Akhtar and to my film and to my song. बहुत सुंदर सर। इसके आफ्टर साथ साथ आपने कुछ फिल्में करी और धीरे धीरे आप टेलीविजन की तरफ रुख आपका ज्यादा हुआ, तो उस क्या समय हो ऐसा टेली जी, हाँ, क्या हो गया कि जब फिल्में करते करते, जब मैं फिल्में करने लगा तो कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा थे। मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट था शत्रुघ्न सिन्हा का, और जी, मैं काफी मगनून हूँ, मरीद हूँ, थैंकफुल हूँ उनको कि उन्होंने जितना सपोर्ट मुझे किया कमर्शियल वर्ल्ड में, उतना किसी और एक्टर ने नहीं किया या किसी और प्रोड्यूसर ने नहीं किया जितना शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने किया। जी, और ही इज ए मैन ऑफ वर्ड, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड। वो जो एक बार सोच लेते हैं, तय कर लेते हैं, फिर वो करते हैं, वैसे ही करते हैं, वो लोगों की बातों में नहीं आते। और कमर्शियल सक्सेस और नॉट सक्सेस में वो, लेकिन somehow the other, उसके बाद जो मैंने फिल्में की, कुछ खास उनमें उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी मुझे साथ साथ में मिली थी। जी, और उसी समय टेलीविजन भी आ रहा था, तो मैं ये जो जिंदगी करने लग गया था। ये जो जी, जिंदगी में वन ऑफ द थ्री डायरेक्टर्स, television was the great let out from all of us filmmakers like me, Kundan Shah, बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य। हमके लिए, हमारे लिए टेलीविजन एक अपने व्यू पे, हमको क्या, हमको अपने विचार, हमको अपनी जो क्रिएटिव अर्ज खत्म करनी हो, अर्ज को बाहर निकालना होता था। वो जी, बात कहनी होती है जो कहनी जरूरी है। जी, तो मीडियम का कोई भी हो, चाहे फिल्म हो चाहे टेलीविजन हो, तो हम सब जी, टेलीविजन की तरफ ज्यादा झुक गए। जी, ये बात और बहुत खूबसूरत है कि जो आपने कही कि आपको अब जो बात कहनी है वो ज्यादा जरूरी है, इसके बजाय कि वो मीडियम क्या हो। हाँ, टेलीविजन आसान आसान मीडियम था, जल्दी उसमें स्ट्रगल कम थी, कंपटीशन कम था, और जी, ज्यादा वाइडर था। जी, एक मतलब कि हम कहते हैं, ये जो जिंदगी ये जो जिंदगी को एक दिन में जितने लोग देखते हैं, उस जी, समय ये कैलकुलेशन थी, उतने ही लोगों ने 52 वीक्स में शोले देखी है। वाह, वाह, आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन? जी, ये जो जिंदगी का एक एपिसोड जितने लोग घर बैठ के एक दिन में देखते हैं, जी, सारे लोगों ने मिला के 52 वीक्स में शोले उतने ही लोगों ने देखी है। जी, ये जो जिंदगी इज अ वेरी आइकॉनिक लेजेंडरी सीरीज जो कि उस वक्त के, हम खासतौर पे हमारी जो जनरेशन है वो देखते हुए बड़े हुए हैं, तो उसकी तो बहुत गहरी छाप है हमारे जहन में। एंड उसमें जो खासतौर पे जो अभिनेता थे उस सीरीज में, जो आज तो वो धुरंधर वो शफी लोग कहलाते नंदा, हैं। शाह, जी, जी, मतलब सतीश शाह है, स्वरूप शफी नामदार संपत थे, हैं, स्वरूप समद, शफी इनाम है, राकेश जी, बेदी, राकेश बेदी, निवेदिता अ, जी, ये सब इतने बड़े कलाकार बने आगे चलकर, और पूरे घर घर में, मतलब हम ये जानते हैं कि घर में हर जो बच्चा और बुजुर्ग
तक सब उस कार्यक्रम को देखा करते थे। एक जैसे हम उस समय एक दौर था कि लोग महाभारत या रामायण बैठ के एक साथ देखा करते थे, उसी तरह से यह जो है जिंदगी भी देखा जाता था। गलियां एकदम खाली हुआ करती थी, उस समय सन्नाटा होता था बाहर। सो उसमें जो ये जो है जिंदगी में आपने बेसिकली राइटिंग का बड़ा कमाल था, तो वो जो राइटिंग में आप कैसे इन्वॉल्व हुए और हाउ डिड यू क्रिएट दैट होल सीरीज, ये जो है जिंदगी, जो आपके सेट ऑफ डायरेक्टर्स थे, आपके जो ये जिंदगी क्रिएट करने में कुंदन शाह और मंजुल सिन्हा का ज्यादा हाथ था, और सबसे बड़ा हाथ था हमारे राइटर शरद जोशी का। जी जी, शरद जोशी साहब लिखते थे उसे, और दैट वाज ही वाज द क्रिएटर ऑफ ये जो जिंदगी उन्होंने बनाया। फिर बाद में दूसरे लोगों ने भी लिखा, अपने और दूसरे राइटरों ने भी लिखा बीच में, लेकिन क्रिएटेड बाद में शुरू में जो टीम जिसने क्रिएट किया था वो मंजुल सिन्हा, कुंदन शाह और शरद जोशी थे। मैं तो उसमें थोड़ा लेट आया था। मैं शुरू से इन्वॉल्व अगर किसी सीरियल में रहा हूँ, क्रिएशन से लेकर उसके बाद हर सीरियल में रहा हूँ, बट द पहला सीरियल था जिसमें मैं क्रिएशन से इन्वॉल्व था, दैट वाज तारा। जी, सो ये जो जी, जो ये जो क्रिएशन ऑफ एट अ राइटिंग स्टेज होता है, जैसे आपने बताया कि जैसे ये जो है जिंदगी में शरद जोशी साहब ने लिखा, उन्होंने क्रिएट किया। शरद जोशी साहब को तो हम जितने नाट्य विधा के जो लोग हैं, हम, क्योंकि आई बिलोंग टू द थिएटर फील्ड फर्स्ट देन फिल्म्स एंड ऑल, तो हम सब ने उनको पढ़ा है और उनके नाम से वाकिफ हैं। और तो उनका एक टेलीविजन मीडियम के लिए एक कार्यक्रम लिखना, सीरीज लिखना, तो क्या ये उनके किसी पहले काम पर आधारित था या उनकी कोई कहानी थी जिसके ऊपर उन्होंने आधारित ये सीरीज बनाई और उसको एक्सपैंड किया उन्होंने? जैसे हम अडेप्टेशन बोलते हैं कि कई सारी चीजें होती हैं, कहानियां होते हैं, नाटक होते हैं, जिनको हम फिल्म या सीरीज के लिए अडेप्ट करते हैं। तो क्या ये एक अडेप्टेशन टाइप का काम था? नहीं, ये अडेप्टेशन का काम नहीं था। ये ओरिजिनल वर्क था, इन लोगों का क्रिएशन थी, एंड डिस्कशन में से निकली हुई बातें थी। अडेप्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर टेलीविजन एंड फिल्म्स। इनफैक्ट अडेप्टेशन एक ऐसा आर्ट है जिसे इतनी इज्जत नहीं मिली, पर मैं बता दूं कि जैसे बेगम कुत्सिया जैदी वाज द फर्स्ट थिएटर पर्सन जिन्होंने इंग्लिश प्लेस को उर्दू में अडाप्ट करना शुरू किया, और आजर का ख्वाब और चांदीज आर्ट को उन्होंने खालिद की खाना के नाम से अडाप्ट किया। मरीज कट्टिकम को उन्होंने संस्कृत से अडाप्ट किया। उनकी अडाप्टेशन पे लोग पीएचडी करते हैं। जी, उनके अडाप्टेशन पे लोग पीएचडी करते हैं। अडाप्टेशन इतना बड़ा आर्ट है, क्योंकि किसी भी क्लासिक को पकड़ के जी, अगर कहा जाए तो तारा वाज अडाप्टेड फ्रॉम द डिफरेंट स्मॉल स्टोरीज। ओके, डिफरेंट कहानियां, डिफरेंट किस्से थे, डिफरेंट रियल इंसिडेंट्स थे। जो मेरी पार्टनर उस समय थी उनको सुनाया करती थी, मुझे उसको याद थे, रियल लोगों की बातें थी। उन सबको अडॉप्ट करके, उन सबको जोड़ करके हमने एक कहानी बनाई थी जिसका नाम था तारा। लेकिन वो कहानी इतनी बड़ी थी कि वो एक जिंदगी में समो नहीं रही थी, तो हमने 4 लड़कियां बनाई थी ताकि वो कहानी की पूरे के पूरे एस्पेक्ट आ जाए। और चारों के चारों ट्रैक जो है पैरेलल चलते थे, क्योंकि चारों ट्रैक इसलिए एक दूसरे के साथ पैरेलल चल पाते थे क्योंकि वो चारों ट्रैक एक ही जिंदगी का हिस्सा थे, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू गए जा रहे थे। दिस वाज अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। हुआ ये कि जी टीवी नया शुरू हुआ था, तो हम लोग तब तक दूरदर्शन में काम करते थे। मुझे कमलेश पांडे जी ने बुलाया जी, और कहा कि कॉमेडी करोगे? तो मैं ये जो जिंदगी के बाद काफी कॉमेडीज कर चुका था दूरदर्शन के लिए। देवी जी की जो शरद जोशी ने लिखी, और हंसो हंसो एक सीरियल किया, देवी जी किया, अपनी अपनी बंसी अपना अपना राग किया,
ऐसे में बहुत सारे अपना वो जो था, ये गुणी नाम करके एक बहुत मेरा फेमस सीरियल था, बहुत पॉपुलर सीरियल था, वो किया। जी तो ऐसे काफी मैं कॉमेडीज कर चुका था। मैंने कहा मैं कॉमेडीज काफी कर चुका हूँ, कुछ सीरियस करना मुझे। तो बोले अच्छा जी सीरियस कर लो। तो दैट्स हाउ the Tara started involving, and the creation of the characters, जी creation of the situation, creation of the backdrop, and creation of the backstories of each character, which are a very important factor of Tara series. We were having the strong backstories of each character. जी वो बैक स्टोरीज जो थी वो कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाए हुए थी। तो उस वजह जी से कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग लगते थे, क्योंकि उसकी जो बैक स्टोरी थी वो बहुत ही उनको जो है सपोर्ट करती थी। उनकी बैकबोन थी वो बैक स्टोरीज सब कैरेक्टर्स की। और हालांकि हम जी फ्लैशबैक में कभी नहीं जाते थे, हम कभी फ्लैशबैक में कहानी सुनाई नहीं उनकी, लेकिन वो हमेशा पार्ट ऑफ द देयर लाइफ रही, पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी रही। तो तो वहां वो तारावास, हाँ, नहीं आप बोल रहे थे। तारावास द सीरियल विच इज वाज क्रिएटेड बाय फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम, एंड फ्रॉम तारा से जर्नी शुरू हुई। मिली वाज द सीरियल विच वाज अडॉप्टेड फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम बनी। दैट जी वाज अडॉप्टेड सीरियल फ्रॉम स्विट्जरलैंड का एक सीरियल था, स्विस लैंग्वेज में। और जी उसके हमने चैनल ने राइट्स लिए थे और हमने उसे जी अडॉप्ट किया था। मैंने जी पाया था बहुत सारे इमोशन जो है उनके हिंदुस्तानियों की तरह, हिंदुस्तानी कहानियों की तरह है। तो जी उसको अडॉप्ट करने में बहुत अच्छा रहा था, और उसको पूरा इंडियनाइज किया था हमने, पूरा। और ये ख्याल रखा था कि उसकी ओरिजिनल की स्पिरिट ना मर जाए, ओरिजिनल की रूह ना चली जाए। एंड दैट्स जी हाउ वी दिस, दैट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम। जी। सो अब थोड़ा सा अगर पीछे जाएं कि आप जैसे पहले दूरदर्शन में जो कार्यक्रम बन रहे थे, सीरीज बन रहे थे, उसके बाद आपने जी टीवी आया, एक सैटेलाइट टीवी, एक नए तरह का एक अपना एक्सपेरिमेंट था वो सैटेलाइट टीवी का। और उसमें जिस तरह के कार्यक्रम बने, प्रोग्रामिंग हुई, वो एक बहुत ही अलग किस्म की थी और उन्होंने एक अलग किस्म की छाप हमारे जनता पे, दर्शकों पर छोड़ी और इवन कलाकारों पर भी वो छोड़ी, और जो कि और धीरे-धीरे वो ट्रेंड बना। तो ऐसा क्या था कि आप जैसे तारा आपने क्रिएट किया जी टीवी के लिए, क्या तारा आप दूरदर्शन पे नहीं कर पाते या ऐसा था? नहीं कर पाते, बिकॉज दूरदर्शन वाज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। दूरदर्शन के पास वो विजन नहीं था जो जी टीवी के पास था, क्योंकि उसकी वजह ये थी, जी टीवी जब आया तो इंटरनेट आया। हुँ, दूरदर्शन के जमाने में इंटरनेट नहीं था। जी, दूरदर्शन के जमाने में फॉरेन टेलीविजन नहीं था। दूरदर्शन जी, के जमाने में वो सारी बातें, दूरदर्शन वाज मच मोर इंडियन रूल्स और इंडियन लिटरेचर से जुड़ा हुआ, हमारी फिल्मों से जुड़ा हुआ चैनल था। जी, जबकि जी टीवी इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ चैनल था। जी, इंटरनेट ने तो आगे विजन ही बदल दिया, इंटरनेट ने आगे जिंदगी बदल दी। इंटरनेट ने आगे हमको वो करने के लिए मौका दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जी, इंटरनेट ने आके हमको वैसा उड़ान भरने की फैसिलिटी दी जो कभी दूरदर्शन में पॉसिबल ही नहीं थी। जी। तो सो इंटरनेट, या यस, सो इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो आपने आज हम ज़माना चल रहा है बड़ा वेब सीरीज़ का। तो आपने भी एक वेब सीरीज़ उस दौर में बनाई आज से कई साल पहले। तब में और अब में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं इन दोनों मीडियम्स में, या उस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल आज हो रहा है बनिस्बत जब आपने किया था? बहुत ज्यादा फर्क है टेक्नोलॉजी का। इनफैक्ट जब हमने वेब सीरीज बनाई थी वो ऐसा लगता था कि वो
है तो सीरियल ही, जैसे दीवार जो वेब सीरीज थी, लेकिन क्योंकि वो एक फाइन आर्ट स्टोरी है, एक शुरू होती है और खत्म हो जाती है इमीडिएटली, तो इस वजह से उसको एक वेब सीरीज का, स्मॉल सीरीज का, उस समय वेब सीरीज तो नाम था ही नहीं, स्मॉल जी सीरीज का नाम दे देते थे जी कि ये रेगुलर चलने वाली 52 एपिसोड या 55 एपिसोड चलने वाली कहानी नहीं है, ये 6 एपिसोड 8 एपिसोड में खत्म हो जाएगी. जी Now today web series is a different genre. जी It's like film, it's like television soap opera, and it's web series. जी It's a as different genre as films and theater. जी It's a different language है इसकी different grammar है, इसकी different presentation है, इसमें फिल्मों की बिगनेस भी है वेब सीरीज में, इसमें टेलीविजन की नरेशन भी है, जी और इसमें लिटरेचर एंड डॉक्यूमेंट्री का भी बहुत ज्यादा असर है. तो इट्स ए मिक्स्ड ब्रीड ऑफ सो मेनी आर्ट फॉर्म्स. जी ये सब आर्ट फॉर्म जो अपने अपने में बढ़ती चली गई, अपने में आगे चलती चली गई, जी तो इनकी औलाद है वेब सीरीज. जी. तो इसमें सभी के गुण हैं इसमें. तो आपको लगता है कि ये जो तीनों विधाएं हैं, मतलब या तीनों क्षेत्र हैं, जैसे फिल्म है, सिनेमा है, या टीवी सीरियल जिनको हम बोलते हैं जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, और वेब सीरीज हैं जो आज इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, क्या इन तीनों की एक अपनी खास तरह की अलग अलग ऑडियंस है, या देयर इज अ क्रॉसओवर? So there is a crossover, but crossover is around no more than 10%. It's a ओके different audience bit together. It's a ओके altogether different. Where the television soap operas are the middle-aged genre. जी It is 35 plus audience जो है generally soap opera देखती है. And ओके it's a genre for the housewives. ओके Where the OTT platform is the platform which is from 18 to 35, ओके which is generally seen by the working people, men, जी women, students, generally seen by the students and the working people. Like, जी and those people, like a working woman's vision is very different than the vision of a housewife. जी So, the television is generally catered by housewife and 35 plus 40 plus audience, where the OTT is from the 18 to 35, in between the audience we cater. So when you are scripting, you have to keep all these factors in mind that कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं. Definitely, in fact, कहानी डिसाइड होते ही वन स्टार्ट्स कंटेम्पलेटिंग कि किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा सूटेबल रहेगा. ये सीरीज बननी चाहिए या इसमें वेब सीरीज बननी चाहिए या इसमें फिल्म बननी चाहिए. जी तो ये वो किस प्लेटफॉर्म के लिए कहानी ज्यादा सूटेबल रहेगी, वो कहानी खुद ही तय तक कर लेती है. तो आपको उस कहानी के डिसीजन को फॉलो करना होता है. आपका डिसीजन कहानी नहीं मानती, जी कहानी का डिसीजन आपको मानना होता है. जी. आपके ऐसी एक शागिर्द रहे, आपके असिस्टेंट रहे, और आगे चल के उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, और आपका भी नाम उससे आई एम श्योर, जो कहते हैं कि जब चेला गुरु से आगे जाता है तो गुरु की ही शोहरत प्राप्ति होती है. अनुराग बसु, तो ये कैसे इनको आपने डिस्कवर किया? सी तारा में 3-4 असिस्टेंट थे जो मेरे साथ जुड़ गए थे. जी और मजे की बात यह है, तारा में और भी बहुत सारे असिस्टेंट जुड़े, हम्म, पर ये 3-4 असिस्टेंट अपने आप में बहुत बड़े डायरेक्टर बने. अनुराग बासु वॉज द लीडिंग. इसके साथ ही कंटेम्पररी था आनंद राय. जी हाँ,
आनंद राय भी तारा में असिस्टेंट था। हालांकि रवि राय का भाई था, उसका भाई खुद डायरेक्टर था, लेकिन रवि ने मुझे फोन करके कहा कि इसे तुम असिस्टेंट रखो, मैं असिस्टेंट रखूंगा तो मेरे भाई भाई का ही वो रहेगा, जी तो तुम्हारे यहाँ ज्यादा प्रोफेशनल बनेगा। जी तो वो मेरे पास उसने भेजा, वो रहा। जी फिर अनिल वी कुमार एक बहुत बड़ा टेलीविजन डायरेक्टर बना। जी वो भी तारा में ही शुरू हुआ था। जी और अभी एक नया मेरा एक दोस्त अभिषेक दुधैया भुज फिल्म कर रहा है, अजय देवगन के साथ जी साथ और जी। संजय दत्त के साथ। वो भी असिस्टेंट था, लेकिन वो तारा के एंड में आया था। तारा भी। Incidentally, my brother is DOP of that film. अच्छा, ओके। अच्छा, Asim, भुज का। Asim Bajaj, yes. ओके 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 ओके। तो वो ठीक है, वो तो बहुत, फिर तो हमारा रिश्ता भी है। तो भुज वो भी मेरा असिस्टेंट ही है। तो ये चारों जो है, इनके अलावा और भी बहुत हैं, लेकिन चारों ने बहुत बड़े ज्यादा नाम कमाया। अनुराग बासु तो लीडिंग है, आनंद राय भी लीडिंग है, अभिषेक दुधैया भी है, और अनिल वी कुमार टेलीविजन में बहुत बड़ा नाम है। जी 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 जी। वेब सीरीज So, में भी अभी हाँ। जी, तो इट इज बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि किसी एक महान गुरु के जरिए जो उनके चेले हैं वो इतना आगे जाते हैं और उनको बढ़ावा मिलता है। और क्या वो लोग आपसे मार्गदर्शन जो है के लिए बीच बीच में संपर्क में रहते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं। अभिषेक की फिल्म तो खैर मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं स्टोरी है मेरी। जी जी लेकिन अनुराग और आनंद राय जो है वो अपने आप में ज्यादा इंडिपेंडेंट है। अभिषेक भी हो जाएगा। जी और ज्यादातर ऐसा कोई मार्गदर्शन वाली बात है नहीं है, लेकिन जब कभी भी मिलते हैं तो बताते रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं भी देख के उनको ज्यादा स्टडी करता रहता हूँ, कितना अच्छा किया और कितना अच्छा और करने वाले हैं ये। और कभी कभी बहुत सारी बातें उनसे मैं सीखता रहता हूँ। जी। लर्निंग नेवर स्टॉप्स कहते हैं जैसे कि। जी 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 जी। सो रमन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। एंड जी बहुत भैया, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद कि और आपने लिफ्ट इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को स्वीकारा। जब भी हम कभी साक्षात मिल पाए तो और हम एक अवार्ड फंक्शन करेंगे, बम्बई में ही करेंगे, जहां हम खुद अपने हाथों से ये अवार्ड आपको देना चाहेंगे। thank you, Riju. Thank you very much, and it was nice talking to you. And thank you, Lift India, for this award. It is my pleasure. It's an honor to me, and thank you so much, Lift India and Riju. आपकी जानकारी के लिए एक दोबारा से आपको बता दें, लिफ्ट जो है वो इट स्टैंड्स फॉर लिटरेचर, इल्यूजन, फिल्म, फ्रेम, टीवी एंड थिएटर। सो Okay. इसमें हमने सारी जो विधाएं हैं आर्ट की, वो सब सम्मिलित की हैं। इसमें फैशन भी है। हम जब फ्रेम बोलते हैं तो उसके अंदर पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफी है, स्कल्पचर्स हैं। तो इन सब की भी हम एग्जीबिशंस करते हैं। Okay. Very, very nice. और जो भी हमारा फेस्टिवल लाइव होता है तो हम इसमें नाटक करते हैं, डांस शोज करते हैं, म्यूजिक शोज, कॉन्सर्ट्स करते हैं। सो एक इट्स मोर देन अ फिल्म फेस्टिवल, बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ कल्चर फेस्ट। Hmm. फिल्म एक इसका हिस्सा है। Thank you. Thank you very much. Thank you very Okay, much. Raman ji, thank you for talking. I'll now Welcome. stop the recording from here. Thank Okay, you. thank you, Thank you. thank you.